I'll ask each one of you to answer this question. हाँ अच्छा नेक्स्ट ये बेलू मु डाकिदेवी आउ थे तीन टाक अच्छी ओके मुझे कर पारे तो डाकी कौट थी कौट ये तो बुलूनी बोले हाँ बोलो what you think are the problems which are plaguing the education sector in India? Huh? Curriculum, okay. हाँ घोषिबा हाँ वेरी गुड आओ हैं ओके वेरी गुड हाँ 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 वेरी गुड को current affairs classes I am not here to teach you, I am here to extract from you. तुम्हें कौन कहूछ मत को then will कौन कहलो प्रियदर्शनी कह प्रियदर्शनी ठीक कहल तो हाँ कह सुना पूजा बोलो कौन कौन प्रॉब्लम अच्छे एजुकेशन सेक्टर तो बोलो lack of primary education कहीं primary education lack तो किसी नहीं टीचर घटिया आछन सेटा को टीचर ट्रेनिंग तुम केमिति दबो teachers through reservation they are getting in through at minus 1.25 वो ट्रेनिंग वेनिंग करके कोई फायदा है नहीं आपको चाहिए क्या है ना वन हु अंडरस्टैंड्स द साइकी ऑफ द स्टूडेंट हमर साइकी या तांका साइकी रे बहुत डिफरेंट यू गेट दैट करिकुलम एंड छुआ इठी एक्सेप्ट करिवेनी क्या करोगे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा जैसा कंडीशन हो जाएगा हाँ ना झगड़ा ही चलेगा व्हाट इज टेलिंग इज करेक्ट से कहला प्राइमरी एजुकेशन प्रॉब्लम अछि आउ गोटे प्रॉब्लम व्हिच आई एम टेलिंग यू इज द प्राइमरी एजुकेशन हैज बिकम वेरी कॉस्टली not from the government school perspective, I'm talking about the private school. Lottery system 1.5 lakhs entry भाई कहाँ I was studying at 5 rupees 5 रुपए था मेरा फीस केंद्रीय विद्यालय 5 rupees so one who is not working in the government sector will he be paying 1.5 lakh rupees for a nursery LKG so government has to cap these things so the one of the primary arguments which these protester cockroaches told was NEP should be scrapped, but NEP is a fantastic thing. NEP, what it brought is, let's say, ki Vishwal kahil na? Dhananjay is studying maths. Dhananjay is studying maths, but Dhananjay is interested in sociology. So Dhananjay can study sociology along with mathematics. So they have intertwined two disciplines in itself through the NEP, which was not available. मेरा मन था कि मैं political science पढूं. I was doing engineering. हमारा स्कोप ही नहीं था जो पढ़ रहा था वो उसी में एंड इंजीनियरिंग में तो इतना गंदा कंडीशन कि यू आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट वो जो पढ़े हो उसका कोई वैल्यू नहीं है इन द मार्केट नो वैल्यू you learn it once you are employed you learn it at the office and you start moving forward तुम्हें धरो गोटे पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर हेलो if you become a professor whatever you have learned in your college that will be put to use in the college but here in the engineering world nothing it's all waste 4 साल क्यों पढ़ा nobody knows I don't know if you ask me a question I will not be able to answer हमारे टीचर भी वैसे थे हम भी वैसे that is the thing so unless and until there is a type of curriculum wherein the students relates to the subject I don't think we will be able to do it. That is why our research work is abysmally low and the government is also not spending enough for research. Ideally you should be spending around 2% to 3% of your GDP on research. कितना करते हो भाई नहीं करते हो PhD वो करता है जिसका कोई मतलब नहीं मतलब वो किसी काम का है नहीं तो वही करने जा रहा है आज के डेट but a reality you are not PhD फिर गाइड एते टॉर्चर करियो जे दैट इज अ डिफरेंट केस रिसर्च कौन करेगा तुम तो बोलोगे सर हमको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए हमको कोई लेना देना नहीं कौन नहीं
There are multiple problems we call. Let's discuss one by one. Why India needs a renewal of its educational need policies? Already we have done, the NEP has done, but let us understand why the things which Mr. Biswal told कि sir employability नहीं है हमारा. What is the education for? Okay, so if at all I am studying something, I am not getting employed commensurate to what I have studied, it is waste. या फिर व्हाट यू आर स्टडिंग, दो टाइप का चीजें होता है. आपको नौकरी नहीं मिलता है तो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट. अगर आपको नौकरी मिलता है पर कमेंसरेट टू योर स्टडीज नहीं मिलता, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. तो दिस लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट, दिस विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. ये तो आपको पता ही है. दिस विल ऑल्सो लीड टू अंडर एम्प्लॉयमेंट. कोई वैल्यू नहीं है. इफ आई एम एन इंजीनियर, आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम मोबाइल कम्युनिकेशन, आई गेट आउट, आई हैव नो आइडिया कि भाई ये क्या है, इसका मार्केट में क्या वैल्यू है. पीपल विल ऑफर मी सिक्योरिटी गार्ड जॉब, 20,000 दूंगा, 15,000 यही बैठ हो ना. नहीं तो इंडिया रे प्रॉब्लम इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया रे प्रॉब्लम इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. यू हैव लॉट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. द थिंग विच आई टॉक्ड that we are not spending enough on research and development. तो कहां से होगा भाई, तुम्हारी चीजें कहां से बनेंगी? तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्चा हुआ दरकार. और हमारा प्रॉब्लम ये कि हमारे सारे सरकार सिर्फ एक ही चीज में ध्यान देते हैं, लाडली बहना, लाडली बहिन, सुभद्रा, अभद्रा, कालिया, बलिया, नोलिया. We are spending money. Is it bringing any productive ideas to your table? I am up for subsidies, but the subsidy should be conditional. I will give it to Biswal Babu only if he is doing this. हो ना नहीं? तो subsidies should be conditional. Unconditional subsidies have actually ruined our people. Vijay is telling तुम बच्चे पैदा कर दो, I will give you सोने का अंगूठी, 1 gram gold. हाँ, देखने का न्यूज़ में it is there. So why would somebody, what is the motivation for somebody to work? Research तो बहुत दूर की बात है, work ही नहीं हो. So we have to make conditionalities. Education में भी if you do well, हम आपको ये करवाएंगे. If you do this, we'll do. So that will build an innovation ecosystem, which we lack. See, you did something extremely great few days back. You know, the Vikram rocket, sky rocket, excellent. While the entire world was sitting in Jantar Mantar doing nonsense, they were doing something productive. Yes, okay, that is the youth. Average age is less than 28 years, and they made it. This is what we need. हो ना नहीं? वेरियस सेक्टर्स में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो इमेजिन हमारे पास क्या नहीं है. हमारे पास लोग संख्या है, हमारे पास यूथ पावर है, सब कुछ है, बट इट इज हाउ वी चैनलाइज आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड. वी आर नॉट चैनलाइजिंग आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी आर वेस्टिंग आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड. जब तक डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप प्रोडक्टिवली यूज नहीं करेंगे, इट विल बिकम अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम लाइक व्हाट हैपेंड इन जंतर मंतर. People may support all these things. I am up for Dharmendra Pradhan's resignation, मुझे वो नहीं, but I am not. I don't support these people. As a moral responsibility, he should have resigned long back. Long back. But यहाँ पे और भी ऐसे लोग हैं जो मतलब कल्प्रिट होके भी they continued as chief ministers, continued as cabinet ministers. They did it. But आपको तो करना है. You say that you are a party with difference, so you should do it. I did not say that you are a party with difference, so you should do it. Now, point is, corruption कौन किया? मंत्री तो खुद नहीं किया बेचारा. First time he did not do and he got it out. He should take responsibility, accountability. जो डामे को ethics है, it is accountability. But किया कौन? I gave प्रियदर्शनी कि भाई क्वेश्चन पेपर 1 नहीं हुआ.
क्वेश्चन पेपर बनेगी मत आनिकी इफ एट ऑल शी डज द रॉन्ग वर्क व्हाट विल आई डू दैट इज द थिंग ये हुआ है नीट के साथ द गवर्नमेंट वाज नॉट इन्वॉल्व people who have done it happened in from Maharashtra where people were given the task to form the question papers यूपीएससी में ये सब नहीं होता कि यूपीएससी में आपके पीछे आईबी वाले घूमते हैं कहीं पता चला डंडे लेके वहीं मारेंगे पेपर सेटिंग करेक्शन एवरीथिंग हैपेंस इनसाइड द यूपीएससी हॉल एंड दिस पीपल हु डू द करेक्शन दे स्टे देयर फॉर 15 days उसके बाद वो घर जाते हैं घर नहीं जा सकते दे आर समन्ड and if at all you are summoned and you will if you say I will not do तब तुम्हारा नाम नॉन अवेलेबल वारंट आ जाता है तो तुम जाओ that is how it is and you know best part to bring in more objectivity you know what is objectivity ethics रे पढ़ी थी वो objectivity माने हाँ fact based evidence based जो तरह की किसी भी शंका नहीं रहे विश्वाल बाबू has written answer 1 this fellow has written answer 1 that fellow has written answer 1 there will be one person who will correct all answer 1 or 1 or 2 3 people max 1 who will only correct answer 1 for everyone और 1 नॉले में 1 2 3 पहले आपका हिस्ट्री का आया था हिस्ट्री में 5 लोग बैठे वही 5 करेक्ट करेंगे टू मिनिमाइज द सब्जेक्टिविटी इन द हो ना नहीं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हु नोस फॉर द सेम आंसर ही गेट्स 5 ही गेट्स 7 अभी बीवी से झगड़ा नहीं हुआ है थोड़ी देर बाद झगड़ा हो गया फोन आया झगड़ा कर दिया दे साला 5 दे दो यू नेवर नो राइट दैट इज व्हाई टू ब्रिंग इन ऑब्जेक्टिविटी दे डिड दिस तो नाउ दे आर स्टार्टिंग विथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे होता है उस हिसाब से कैट वैट जैसे होता है उस हिसाब से तुम दो टाइम फ्रेम सब करेगा इट्स अ गुड थिंग अब कौन इक्विटेबल एक्सेस ensure quality education across all sections of the society for that you had that RT right to education but the problem is are you able to sustain that no करीब बच्चे कॉलेज में तो मैं स्कूल में तो दाखिला हो गया उसका यूनिफॉर्म उसकी किताबें उसकी दुनिया चीजें हाउ विल दे अफोर्ड इट and equitable access we do not have good teachers don't want to go to rural areas हो ना नहीं टीचर्स डॉक्टर्स बोथ दे डोंट वांट टू गो टू रूरल एरियाज तो भाई कहां से इक्विटेबल ये होगा नहीं हो सकता so we have to bring in such policies where we have to incentivize these people to go to those areas if you stay there for 5 years you will be promoted and you will be brought back something you have to do हो ना नहीं yes rapid growth of private coaching industry due to competitive entrance exams has deepened the mismatch between educational qualification and employment opportunities. Yes. Coaching institutes have a positive role to play, but they have turned out to be negative because they are starting to become pressure groups. The entire fiasco you have seen, na? Coaching institute were up in arms. Your job is to help the students but you are demonizing the state and you are demonizing students also galat cheez hai na sikhao when I started my career in 2017 I went first time to teach Bangalore तो बैंगलोर में मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अपीयर्ड फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू फर्स्ट थिंग आई टोल्ड 2 times बोला ठीक है आप 2 बार दिए हैं तो वी विल अलाउ यू टू गिव अ डेमो अदरवाइज विल नॉट इवन अलाउ यू टू गिव अ डेमो तो मैं डेमो दिया तो बहुत अच्छा हो गया था आई बस somehow kept now because of social media anybody is a teacher anybody is sharing his opinion anybody is an educator so there is a plethora of information coming from various sources when there is a plethora of information so will the student not get confused खान सर will teach खान सर कौन है भाई तुम बैकग्राउंड क्या है we need good people who have experience in this field as somebody a responsible citizen of India
मुझे भी वैसे लोग पढ़ा है जो कि बहुत टॉप लेवल के लोग. He told that day that we were taught by people जिनके आप किताबें पढ़ते हो. रमेश सिंह, तुम्हारा माजिद हुसैन, ये लोग they were very good in their particular. आजकल कोई भी पढ़ा रहा है. So that is wrong, right? So decentralization of education, commercialization of education, though has given you plethora of resources, but it has confused the souls also. So it is up to the students to decide what they will take in and what they will leave. Many students do not clear the examination not because they do not know, because they know too much. उसके बाद समझ नहीं आता कि करूं क्या. So this also has to be regulated. Coaching, I think they were getting some bills with regards to this. ठीक है. Okay, major challenges in India's education. We talked about that few minutes back. Somebody was telling about rote learning. रट्टे मारने का हमारा शौक बहुत अच्छा है. हमारे मतलब सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, our society has supported this memorization rather than supporting the understanding of a language. I will ask you one thing. कौन पढ़ा हो जी? Why did I ask you questions on Buddhism? रटे हुए चीज तो मैं तुमको नहीं बोला, मैं तो खुद रट के नहीं आया, जो मुझे याद है मैं तो. तुम्हारे इकोनॉमिक्स कौन पढ़ा हो जी? What is been taught? Poverty. What, sorry गला? Poverty पूर्व कौन पढ़ा होता है? GDP वगैरह पढ़ा है जी. Now, if let's say if you mug it up, what is GDP? What is GDP? What is GDP? Rather than understanding what is actually GDP, why there is a problem? Somebody asks you, what is the problem with the calculation of GDP? What will you say? Problem कौन? With the GDP calculation, what is the problem? हाँ? सुबुनी. हाँ, इनफॉर्मल सेक्टर का कोई मतलब लेन देन ही नहीं है इससे, तो ब्लैक मनी ऐसे उड़ जाता है, वो पता ही नहीं चलता. सेकेंड, वाई यू आर प्रोड्यूसिंग? ही इज प्रोड्यूसिंग फॉर वॉर. वो वेपन्स प्रोड्यूस कर करके उसका जीडीपी बहुत हाई है. सो क्वालिटी ऑफ लाइफ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट. सेकेंड, जितना पैसा आ रहा है, इज इट गेटिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड? इक्विटेबली, नॉट इक्वली, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बारे में हमारा कोई बात नहीं हो. हाउस होल्ड इकोनॉमी पे हम ध्यान नहीं देते. There are multiple things. So if you are not understanding the concept in itself, how will you answer these questions? So that is the problem with the rote learning. Jo, what is your name? I forgot. Bapi. Bapi. हाँ, very good. Bapi जो कहले, एटा ही सबुठ बड़ा problem. So our society has to incentivize out of box thinking. हम रटने में विश्वास नहीं करेंगे. That is why the questions which you are getting in your examination are not ratta based. This is not a banking examination. This is about how you apply your. It's about analysis. Same data है, एक आदमी एक एनालिसिस करता है, दूसरा आदमी दूसरा एनालिसिस करता है. सेम डेटा, डिपेंडिंग ऑन हिज कंडीशनिंग, राइट? सेम थिंग, नो. एक ग्लास है, हाफ फुल हाफ एम्प्टी. somebody will say it half full, somebody will say it half empty. हो ना नहीं? It depends on how you are perceiving the thing. यहाँ पे परसेप्शन को देने के लिए हमको चांस देना चाहिए rather than रटने की. Yes, next. Administrative issues. हाँ, limited autonomy, excessive bureaucratic. This is the problem. The teachers in India are so overburdened कि वो पढ़ाने के सिवा बाकी सब कर रहे हैं. SIR भी वही करेंगे, सेंसस भी वही करेंगे, मिड डे मील भी वही करेंगे, ओंडा गणेंगे भी वही. टीचर इज देयर टू टीच ना. If these things do not happen, what will you do? Plus there is too much of control. So these things, they have to be given certain autonomy. तो autonomy नहीं दोगे कैसे चलेगा?
Excuse me. बाप रे. So if anything which is not given autonomy, definitely their scope will reduce. तो एजुकेशन सेक्टर भी सही है, इट्स रिड्यूसिंग डे बाय डे. कोचिंग कल्चर, आई टोल्ड यू, कोचिंग कल्चर ऐसा हो गया कि अब आप स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको कोई पूछता ही नहीं, हो ना नहीं. नहले गोटे कथा कह, फॉर दिस एग्जामिनेशन आल्सो डू यू नीड कोचिंग? यू डोंट नीड. बट आप कर रहे हो ना. तो साइकी हमारा वैसा हो गया है, हम भी किए हैं, तुम भी वही कर. और all these things you have studied in your school, whatever is being taught, learned it in your school, right? स्कूल में ही पढ़े तो भाई इसकी क्या करें? नहीं भाई, ये कोचिंग नहले हबनी. It is there, it has become a part of our psyche. My father cleared UPSC without coaching. कौन सा कोचिंग था भाई उस टाइम? Nothing. First attempt, 22 years clear. Talking about 1972. कैसे हो गया? कोचिंग तो था नहीं. अब मैं कोचिंग लेके कौन सा तीर को मार लिया? नहीं हुआ. You got my point? ये हमारे साइकी में ये हो गया. बट यस, डिसेंट्रलाइजेशन भी इसको थोड़ा कम कर, क्योंकि इतने सारे एजुकेटर्स आपके लिए आ गए हैं, वो इतना मटेरियल छोड़ दें, कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती. बट पॉइंट इज जो जिनसोडा कही, it is not about what you are accepting. Now the condition is the what you are rejecting. झाड़ू जाओ, यही है ना. So that is what examination fail. हाँ, exactly. Demand सही पता रखो. It is a part of our psyche. It is a part of our psyche कि बिना कोचिंग के हम क्लियर नहीं कर सकते, हो ना नहीं. तो ये था एग्जामिनेशन फेलियर, ये तो बोल दिया. टीचर शॉर्टेज, टीचर कोई बनना नहीं चाहता. आई डोंट, मुझे तो कभी जिंदगी में पढ़ाने का मन नहीं करता है. नहीं, रोज घर पे गालियां पड़ती हैं मुझे, क्यों बोलते रहते हो रोज रोज. 1% में मन नहीं मरा, नहीं तो ऐसे जबरदस्ती आके पढ़ा के यार, नो वर्क टू डू. देखिए तुम लोग आके थोड़ा गालियां देके जाओ ना, मन खुश हो जाएगा, चले जाओ. घर पे तो नहीं दे सकता, यहीं आके दे दूंगा, है ना नहीं. वही बात. I have seen so much transition in the students' psyche in the last 10 years. ତାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି. I don't like. Reason is बहुत सारे चेंज हो गया सोशल मीडिया पर से. लोग अपना कुछ भी रील देख के अपना आइडिया बना लेते हैं. दुनिया वैसे नहीं है. ଏତେ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ କାହିଁ ହେଉଛି? लोग रील बनेବାକୁ ही जाऊଛନ୍ତି, फोटो उठेବାକୁ ही जाऊଛନ୍ତି. भगवान के प्रति 2 पैसे का इनका ये नहीं है. नहीं है भाई, इट्स द रियलिटी. We have stopped looking inward. The only thing we are doing is outward thoughts. हमारे माँ बाप खुश थे, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं था, बिकॉज उनको शो ऑफ करने का शौक नहीं था. दे वर वेरी हैप्पी इन देयर लाइव्स. खाए पिए आराम से सोए, खत्म, होना नहीं. आजकल इंस्टाग्राम में दिखाओ, आई लव माई हस्बैंड, आई लव माई वाइफ, माई फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे. क्या है? बेबी शावर, हाउस वार्मिंग, मेहंदी, संगीत. क्या है ये? दिस इज द रियलिटी. वी आर नॉट लुकिंग इनवर्ड्स. तो even now we have to decide what we want to reject and what we want to accept in terms of education. देखो, this has directly affected our economy. I told you unemployment है, underemployment, skill mismatch भी है. मैं इंजीनियरिंग पास करके भी मेरे को अगर भेज दिया जाए तो मेरा स्किल नहीं होगा, because those things are, that is why vocationalization is a part of your NEP. It's a very, very important thing. I asked my AC repair fellow, how much do you earn? Like every day I earn around 10,000 rupees. तो मैं पौड़ी की कौन उखाड़ लिया. That is the reality, because there is a skill mismatch.
This is what primarily the question is. Electricians are earning 2 to 3 lakhs per month. Plumbers are earning 2 to 3 lakhs per month. This is the reality of India. And people don't accept the Protestant culture. Christian man ko dita, Roman Catholic and Protestants. Protestant culture, even Roman Catholic bhi thoda hai, they give lot of significance to physical labor. Amaro kono? Buddhir jasya balam tasya nirbuddhe sukuto balam. That is what we say. Our talk is about brain. हमें सही तरह वैसे ये करते हैं, जिस वजह से हम फिजिकल लेबर वाली चीजों वालों को जो करते हैं उनको इज्जत ही नहीं दी हम कभी, हो ना? नहीं, दैट इज द थिंग. सही स्किल मिसमैच हो गया आज के डेट में इकोनॉमी में, हो ना? नहीं, चाकरी करीबी किंतु गुड़ा करीबी नहीं, क्या मिलेगा? 15,000 की नौकरी कर रहे हो, वहां पे तुम 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो, बिकॉज एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन स्किल्स. सो वी नीड लॉट ऑफ पीपल. इंडिया में बहुत शॉर्टेज है इसका. इलेक्ट्रिशियन खोजिए मिल गोटे पड़िया पड़े सर प्लीज ऐसे कर दिया, हो ना? नहीं, ये रियलिटी है. एंड पीपल फ्रॉम भुवनेश्वर दे विल कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक घर बना देंगे, भाड़े पे दे देंगे, एंजॉय करेंगे. दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिल्ली. दिल्ली फेलोज आल्सो डू नथिंग. सिटीज में मैक्सिमम लाइफ हैव बिकम लाइक दैट, ओनली रेंट पे दे दो और बैठो. हाँ, बुझपन. नेक्स्ट, declining trust in public education with dwindling teacher quality. Yes, who will send their kids to public schools? None. तो आपको वैसे भी इज्जत, तो हमने इतने साल में क्या एफर्ट दिए हैं कि इसको इम्प्रूव करें? आई एम अ गवर्नमेंट स्कूल फेलो. मैंने केंद्रीय विद्यालय इज गवर्नमेंट, बट केंद्रीय विद्यालय वाज हेवन. अगर सेंट्रल स्कूल्स इतना अच्छे तो स्टेट स्कूल्स को हम अच्छा क्यों नहीं कर सकते? सो दैट एवरीबडी कैन स्टडी. तमें सरकार को धर कह कि प्राइवेट स्कूल माने सरकार तुमको तुमको किए पढ़ेब, तुम जाए पढ़ुन ये, तुम्हें कहीं पढ़ुन. रीजन इज द क्वालिटी. व्हाई आर वी नॉट इम्प्रूविंग द क्वालिटी? टीचर तो वही है, सबसे ज्यादा पैसा कौन से टीचर को मिलता है? केवी वालों को मिलता है. दे गेट लॉट ऑफ सैलरी. तुम जाओ ना बड़ा बड़ा स्कूल, लॉयोला गियोला, वो कुछ नहीं, उनके टीचर को उतना पैसा नहीं मिलता. नहीं, दैट इज द थिंग. नेक्स्ट, तो वही है. पुअर लर्निंग आउटकम्स आएगा. क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन. क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन क्या है? बहुत कम लोग पढ़िले, जी से जिनस गुड़ा पढ़िला तार वैल्यू कौन है? which I told about skill mismatch. You have inflated their value, right? They are not that much adept in that thing. That is what I told. Weak innovation ecosystem. आप कुछ नहीं कर रहे. Loss of demographic dividend. This is precisely what we have discussed. If at all you are not harnessing your demographic dividend, that means तुम्हें तुम्हारा यंग जनरेशन को खाली सिविल वॉर पर रेडी रखो. ये जो एनआरकी हुआ, इट इज ओनली बिकॉज दे वर अनएम्प्लॉयड. कोई काम नहीं. स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं था, हार्डली. तो जाइए कि मास्टर कैंटीन में बस स्टूडेंट पढ़ा था मैं नहीं, मतलब बसते लगे, कोई काम नहीं है. दैट इज द थिंग. हां, तो क्लास करतो कही था मुझे जाइए तुम सहित मिसी जाइए बुझिपाल. सो इट्स नॉट अ unidimensional crisis. This crisis becomes very very multi-dimensional. सब आडू तुमको मारियो. सहित एनईपी कौन करतला देखो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सपीरियंशियल एजुकेशन करिकुलम मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, जो मैं थोड़ी देर पहले बोला. ही वांट्स टू स्टडी सोशियोलॉजी अलोंग विथ इंजीनियरिंग. शी वांट्स टू स्टडी बायोलॉजी विथ मैथमेटिक्स. शी वांट्स टू लर्न पॉलिटिकल साइंस विथ इंजीनियरिंग. हम क्रॉस सब्सिडाइज ये कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स का. दैट इज गुड. इफ यू
ever learn about there's something called as DNA, deoxyribonucleic acids? ପଢିଛ ନା? ମାତ ନା କଣ? ଇତିଶ ମିତା କଣ ପଢିକି ଆସିଛ? What is your background? କୋଉଥିରେ? କେମିଷ୍ଟ୍ରି। DNA ପଢିଛ? DNA କଣ? वो तो मैं भी बोला हूँ, वो है क्या? It gives information about you, your next generation, your past. वही है ना? तो there were three people: Francis Crick, Watson and Maurice Wilkins. एक उनमें से फिजिसिस्ट वाटसन, एक उनमें से बायोलॉजिस्ट। फिजिसिस्ट निकाल दिया व्हाट इज द शेप ऑफ द DNA, double helical. So if you, and I'll tell you one more thing. My grandfather was asked a question at Heidelberg University in Germany. He was asked questions. He said, I don't know, I don't know, I don't know. Then he was somehow selected. Then he asked why, but he wanted to do something in different, because let's say she is from sociology but she wants to pursue in security studies. When asked question, she did not answer security studies, वो कुछ नहीं बोल पाए, but sociology पूछने पर she answered. So when he asked the director, why did you select me for the postdoctoral, he told, if you are good in your own thing, you will do good in this also. The same thing. It is all about understanding. That is what we are telling, the raw Wala system. It is not associated with any subject. It is all about the analytical power of your brain, which you are not utilizing. You must have learnt in biology that something known as vestigial organ, which is not used in these days. Appendix, this tailbone, कमर में एक hole. You have made your brain a vestigial organ where you are not using your brain anymore. ये बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोला, आप अपना एनालिसिस नहीं करते. So for that we need this. आप एक और चीज, मदर टंग इंस्ट्रक्शन इन अर्ली ग्रेड्स. There was something known as what is, you are learning, what do you call that, modern history. Sir is teaching modern history. पढ़ाई नहीं, starting modern history starting. Okay. Modern history में there's something known as the Woods Dispatch. 1854 में they started. What they told is, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, they will learn in their vernacular language. है ना, सामना छुआ सब ओडिया रे सीखिबे. ठीक है, ऊपर को गला 7th 8th क्लास एंग्लो वर्नाकुलर, इंग्लिश विथ वर्नाकुलर लैंग्वेज. और जब आप यूनिवर्सिटी चले जाओगे तब आप इंग्लिश में सीखो. दैट इज व्हाट दे आर अगेन सेइंग. द इंक्लूसिव एक्सेस करेंगे क्या, मदर टंग इंस्ट्रक्शन इन अर्ली ग्रेड्स, वोकेशनल एजुकेशन इन अर्ली ग्रेड्स एंड डिजिटल लर्निंग. थोड़ा डिफरेंट हो गया है. देयर दैट टाइम सिचुएशन वाज डिफरेंट, दिस टाइम सिचुएशन वाज डिफरेंट. ओके, तो ये सारी चीजें करो. ये करने से कौन हुआ, बच्चा रिलेट अच्छा करेगा. If you relate well to the subject, you will do well. My roommate was from Puri Jilla School. मैं तो फिर भी बाहर से आया. My roommate was from Puri Jilla School. बढ़िया. If he complains that मुझे इंग्लिश नहीं आता है यूपीएससी का, then that is cowardness. That is cowardice. माना नहीं? But he didn't. He cleared IAS. That is the thing. It is all about how you are utilizing your analytical power. इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है. आज नहीं तो कल आप सीख जाओगे, पढ़ोगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली. हो ना नहीं? मदर टंग बेस्ड इज गुड. At one level you have to translate that into English. Assessment reforms, continuous assessments होने चाहिए मेरे हिसाब से. छुआ मन करो रादर देन एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स होते चाहिए और मल्टीपल डायमेंशन से होने चाहिए. टीचर का भी बच्चे असेसमेंट करने चाहिए. When I went to one of the leading edtech organizations, I was asked to give a demo.
डेमो में everybody students who were there, they had to give the ranking. If you get there were 70 people, if you get around 45 to 58 8 marks out of 10 हो गया. I got 64, 8 plus. That is the thing. तो स्टूडेंट्स को अगर टीचर इवेल्युएट कर रहा है, टीचर को भी स्टूडेंट्स इवेल्युएट 360 डिग्री इवेल्युएशन, दैट इज गुड, राइट? टीचर रिफॉर्म्स, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, बार बार ये बोला जाता है, रिजर्वेशन हटाओ इसमें. ये सब में नहीं हटाओगे तो कल को तुम्हारा सारा जनरेशन, भले रिजर्व्ड हो भले जनरल हो, सारे ही बर्बाद हो जाएंगे. In 70 years you have not even achieved, not even able to uplift the SC and ST to normal general cutoff. That means you have failed somewhere. क्या प्रॉब्लम है, एनालाइज करो. See, these things may look bad, may look casteist, but these are uncomfortable discussions which need to be done. हो ना? नहीं, ये अनकंफर्टेबल ही जाऊँ, बट ठीक है, कास्ट बेस्ड है तो है भाई, है तो हमारे तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो डिस्कस तो करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट, गवर्नेंस. टीचर मान का रिक्रूटमेंट रे बहुत घपला होता है. इन बंगाल, इन ओडिशा ऑल्सो. यार टीचर्स को पहले तुम बोलोगे कि तुम 7 साल का पहले प्रोबेशन करो. क्यों भाई? बाकी तो किसी सरकारी लोगों को तुम नहीं करते हो ऐसे 7 साल का प्रोबेशन, इनसे क्यों करवा रहे हो? नहीं सर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स सर आफ्टर दे बिकम टीचर क्या रील बनाते हैं सर, आज हमने ये किया, आज हमने वो किया. एक लड़की तो इतने हद तक चली गई, वो बोली मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ, मेरा पति तुमको जो करना है तुम कर लो. हैव यू सीन दैट रील? सी, अरे पाठों के तेरे पड़े हो भाई, तो पूरा दिन अपना व्लॉग कर रहे हैं वहां पे स्कूल में जाके. इट्स शेमफुल थिंग, दीस थिंग्स हैव टू बी. તમે छुआ करो जिनसे फोकस करो ना, बिकॉज तुम्हारे हाथ में एग्जाम में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. टीचर ही वैल्यूलेस होगा तो बच्चे कहाँ से वैल्यू आएंगे? तो वैल्यू बेस्ड करवाओ. स्किल डेवलपमेंट तो तुमको पता है, हमको ये ठीक है. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो चुका है बहुत. हम टाइम रहते टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन नॉट, बिकॉज टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर. नाउ इट इज, बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले फोन चला देता है. एक छोटा हाथी रोड पे गया, एक मोटा हाथी सॉरी, झूम के चला, वैसे कुछ है ना? नहीं, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, हाउ, दिस आर ऑल्सो टेक्नोलॉजिकली, राइट? वो विजुअलाइज कर रहा है चीज. हमारे टाइम में विजुअलाइज, तुम्हें विजुअलाइज केमिति करते हो? बाय व्हेन यू रीड अ नॉवेल यू विजुअलाइज. अच्छा ये मर्डर करने जा रहा है, अच्छा ये चल रहा है. नाउ दे आर विजुअल सीइंग इट, तो दे आर वन स्टेप आगे. फील करने वाला भी आ जाएगा टेक्नोलॉजी, फील इट ऑल्सो. एम्पैथी जिसको हम बोलते हैं, अभी सिंपैथी में रह गए, कुछ दिन बाद एम्पैथी में भी आ जाएंगे. हैं कौन कहलो सारदेवी केतरा आल सर केमती सर पहुँची होगा सार आसे सोशल जस्टिस गोटे ताले गोटे टॉपिक सर काली आसबे आ टॉपिक गोटे. ओके, এইগুলা লিখিকি রাখো. You keep these things. These are the things which the government of India has endured for the people. Now, especially for you, since you are writing the mains examination, you have to write these things in your answers. So everybody answer तो हम लिख देंगे, but without government skills, government schemes and initiatives, if we write that answer, it is of no use. So always inculcate the habit of entering what schemes. Okay, next, बेटा यूपीएससी वैल्यू एडिशन, ये आप जोड़ सकते हो कि क्या क्या कमेटी थे. कोठारी कमीशन एक था, एनईपी 1986 था, एनईपी 2020, ये सारे आप जोड़ सकते हो आपके आंसर्स पे. ठीक है. अच्छा मैं आपको कुछ बता, ह्यूमन कैपिटल माने कौन कहलो? when he is skilled, when he is developed and he can contribute to the society, that is what we call as human capital.
बाकी सर तो मैं बोल दिया, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो ज्वाइन करते हैं, वी हैव समथिंग नोन एज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରସ୍ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ଫର୍ women ଅଛି, the higher the enrollment the better, the less is the inequality, ବୁଝିପାରିଲ? तो you have to, ତମର ସାର୍ ପଢେଇବେ indices ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବେ, you have to correlate that with this. So this preparation is all about correlating. See, SDGs, sustainable development goals, quality education, gender inequality, decent work and equality. Decent work, we talked about underemployment, we talked about unemployment. When will you get decent work and economic growth? Only when your work is congruent to what you have learned. हो ना? नहीं, मैं अभी मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ के अगर रिक्शा चला रहा हूँ, that means my job is not congruent to what I have studied. That has to match. So any country which is not able to give that, that is doing a disservice to its citizens. So you have to, these are all constitutional, what do you call that? ये क्या हो गया भाई? चलो ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स. तो जब भी आप आंसर लिखते हो, ये सारी चीजों को जोड़ने की कोशिश कीजिए. इसीलिए मैं लास्ट में हर बार लेके आता हूं जब कि ये सारी चीजें रखता हूं. यू कैन आस्क द people there, they will give you the, what do you call that, PPT also. Okay, तो ଏଇଗୁଡ଼ା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା, so what we discussed today is an answer in itself, a 15 marker. So every day let us try to understand these things from the perspective of answer writing. from वही चीज है, from memory to competence. आपके दिमाग से आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. फाउंडेशन कैसे बढ़ाओ? फाउंडेशन तब होगा जब आपका टीचर इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ डिजिटल एंड फिजिकल दोनों ही स्ट्रांग हो. ठीक है, जहां पे लर्निंग आउटकम्स ज्यादा बेटर हो. ये है. अब कौन रियलाइज द डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर आप रियलाइज नहीं करेंगे, इट विल बी अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर यू एंड इट मे लीड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ द नेशन. सिविल वॉर्स कोट हुए, ये यंग लोक मैंने मोस्टली करना, बुढ़ा मैंने थोड़े आके लड़ेंगे तुम्हारे लिए. बुढ़ा मैंने माड़ खाई यंग बच्चे, दैट इज, हाँ वही. आउ कौन थिला, दुटा टॉपिक अच्छी, आई थिंक काली आसले, काली आम आउ घंटे बस करदे. आज तुम आउ गोटे क्लास अच्छी बोधे, सोशल जस्टिस. हाँ सोशियोलॉजी, कौन सोशियोलॉजी ऑप्शनल? हाँ सोशियोलॉजी क्लास अच्छी, सोशल जस्टिस. ठीक है, मैं कल आता हूँ फिर से. कल वी विल डू, विल टॉक अबाउट 2 more topics. We'll talk about South China Sea. We'll discuss about we are talking about geopolitics of South China Sea. ठीक है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट वन ओडिशा बेस्ड टॉपिक, एक इको लाइन बोल के बनाया है हमारे यहाँ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. 2 टॉपिक्स विल डिस्कस टुमारो. ठीक है, चलो बाय बाय.